Hello students, how are you? Definitely you will be fine. आज हम ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के अंतर्गत टी रेशियोज का स्पेशल एंगल्स पर वैल्यू निकालना बताएंगे और उनका डेरिवेशन भी मैं बताऊंगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह समझनी है तो इससे पहले की जो हमारी वीडियोस हैं उनको जरूर देखें और उसके लिए हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जिसको आप एक्टिवेट करके उसको देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट एंगल ऑफ 45 डिग्री। वी आर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज, इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट एंगल 45 डिग्री। 45 डिग्री पर हम 45 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज डिराइव करेंगे। For that, consider an triangle, right angle at M. Now here we are taking angle as a 45 degree and this one is the 90. So 90 plus 45, that is 135. And remaining this angle is equal to 45 degree. Why? Because the sum of all the three angles of a triangle, that is equal to 180 degree. Therefore 180 degree minus 135 degree, that is 45 degree. In this way, there are two angles, equal angles of 45 degree in this triangle. Therefore these sides are equal. Because two angles are equal, so their corresponding sides are also equal. In this way we can say that triangle PMO is an isosceles right angle triangle at M. If we suppose the side of this as x, अगर हम उसे x मान लेते या a मान लेते हैं, suppose this is a. Now by using the Pythagoras, OP is a hypotenuse of this triangle. Therefore by Pythagoras theorem, OP is equal to under root OM square plus PM square, that is A square plus A square, that is under root 2A square, that is A root 2. Means the value of OP is A root 2. Now if we take this 45 as an angle, then sine 45 degree. What is the definition of sine? That is perpendicular upon hypotenuse. Now here perpendicular is A and hypotenuse is equal to A root 2. A से A cancel हो गया, 1 upon root 2. This is the value of sine 45 degree. कितनी जाए? Sine 45 degree. Cos 45 degree. What is the definition of cos? That is base upon hypotenuse. Now what is base here? That is OM upon OP. OM A root 2, A से कैंसल, 1 upon root 2. इस तरह cos 45 डिग्री की वैल्यू भी आपको 1 upon root 2 मिलेगी. Similarly tan 45, what is the definition of tan 45? Perpendicular upon base. What is perpendicular here? A and base A. A upon A, that is 1. Sec 45 degree. Sec is nothing but the reciprocal of cos, that is OP upon OM. OP A root 2 upon OM, that is equal to A under root 2. Cosec 45 degree, that is the reciprocal of sine. Directly you can write root 2. Cot 45 degree, that is reciprocal of tan, that is 1. In this way we have derived the values of different T ratios at angle 45 degree. इसी प्रकार से अब हम सेकेंडली बात करते हैं एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री की बात करते हैं। 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए तो देखिए, जब हम 60 डिग्री एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, सपोज दिस POQ is an equilateral triangle.
equilateral triangle. What do you mean by equilateral triangle? All the sides are equal. Suppose the side of OP equal to 2a, that is also 2a, and OQ is also 2a. The length of each side, that is equal to 2a. Now draw a perpendicular PM. Draw a perpendicular PM on OQ. This M is the midpoint of OQ. Therefore OM equal to MQ and that is equal to A. OM MQ इक्वल है और उनकी वैल्यू A के बराबर है. Now this is the, because it is a equilateral triangle, so 60, 60 and 60. This is also, the whole angle is equal to 60 degree. And half of the 60, that is equal to 30 degree. Now in triangle OMP, in triangle OMP, you take sin 60 degree. Sin 60 means perpendicular upon hypotenuse. हाँ, first we find this side. Sin 60 फाइंड आउट करने से पहले हमें PM निकालना पड़ेगा. तो देखो PMO, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, PM इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर OP स्क्वायर माइनस दिस OM स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OP, that is 2a whole square minus OM, that is A, that is 4a square minus a square under root 3a square, a root 3. The value of PM is equal to a root 3. Now sin 60, what is the definition of sin? Perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular क्या है आपका? a root 3 और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज कितना है? 2a. a से a कैंसिल, दैट इज रूट 3/2. इसी प्रकार से आप cos 60 निकाल सकते हैं. cos 60 की डेफिनेशन क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज बेस? a. हाइपोटेन्यूज 2a. a से a कैंसिल, 1/2. tan 60. tan 60 का फॉर्मूला क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर a रूट 3, बेस a, कैंसल रूट 3. इसी प्रकार sec 60. sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos. इसका उल्टा कर दीजिए 2. cosec 60, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin. इसका उल्टा कर दीजिए 2/√3. cot 60 degree, that is the reciprocal of tan, 1/√3. In this way you are able to find out the value of different trigonometric ratios at special angle 60 degree. Similarly, if you want to find out the value of trigonometric ratios at 30 degree, then you take theta as this angle, sin 30. sin 30 के अपोजिट ये हो गया आपका परपेंडिकुलर. थीटा जो होता है, एंगल होता है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि हमारा साइन की डेफिनेशन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो 30 के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया a, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 2a. कैंसिल हो जाएगा 1/2. cos 30 की बात करें, फॉर्मूला है आपका B/H. ये 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, पास वाला उसका बेस होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है. तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी a रूट 3/2a. a से a कैंसिल हो गया, रूट 3/2. tan 30 डिग्री, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इसका परपेंडिकुलर ये है a, बेस ये है a रूट 3, कैंसिल हो गया 1/√3. sec 30 की बात करें, cos का रेसिप्रोकल होता है 2/√3. cosec 30 की बात करें, रेसिप्रोकल होता है sin का. cot 30 की बात करें, रेसिप्रोकल होता है tan का.
इस तरह से आप 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब दो एंगल और रह गए आपके 0 डिग्री और 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं 0 डिग्री की। द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट 0 डिग्री। लेट अस कंसिडर दिस फिगर। दिस इज द revolving line OP. This is the revolving line OP. This is a fixed line OM. देखिए ये रिवॉल्विंग लाइन जो है जैसे जैसे हम नीचे लाएंगे, अभी फिलहाल इस ट्रायंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। क्योंकि हम एंगल 0 की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री, तो ये 0 कब होगा? जब ये एंगल 0 हो जाए। और ये 0 कब होगा? कि ये रिवॉल्विंग लाइन OP जो है इधर को आते आते OM के साथ कोइंसाइड कर जाए। When the revolving line OP coincides with OM, then this angle becomes 0 डिग्री। ठीक है। और जब ये एंगल 0 डिग्री हो जाएगा और ये इससे कोइंसाइड हो जाएगी, इट मीन्स OP इज इक्वल टू OM। OP जो है OM के बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो हम बात करते हैं साइन 0 डिग्री की। फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां पे परपेंडिकुलर, जब ये रिवॉल्विंग लाइन जब ये 0 डिग्री हो जाएगा तो ये यहां पर रिवॉल्व कोइंसाइड हो जाएगी, तो O ये जो PM है यानी परपेंडिकुलर है वो 0 हो जाएगा। और हाइपोटेनियस जो ये आपका OP है वो OP रहेगा, लेकिन जब ऊपर 0 हो गया तो वैल्यू क्या आ गई? 0। साइन 0 इज इक्वल टू 0। कॉस 0 की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो बेस ये है, ठीक है ना, ये बेस हो गया OM और ये हाइपोटेनियस ये जो है वो इधर आ जाएगी, कोइंसाइड हो जाएगी। कोइंसाइड हो जाएगी तो जो OP जो है OP दैट इज इक्वल टू OM। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। इन दिस वे you are able to find the value of cos 0 tan 0 डिग्री। फॉर्मूला क्या है आपका? P अपॉन B। तो ये P है, P तो 0 हो गया क्योंकि इससे कोइंसाइड हो जाएगी तो 0 हो जाएगा। और B आपका OM है, दैट इज इक्वल टू 0। sec 0 की बात करते हैं, sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, दैट इज 1। cosec 0 की बात करें, cosec 0 is the reciprocal of sine, that is 1 upon 0 and that is equal to infinity। cot 0 की बात करें, cot 0 is the reciprocal of tan, that is 1 upon 0 that is equal to infinity। इस तरह से आप जो है 0 डिग्रीज पे भी डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाल सकते हैं। नाउ कम टू द एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री की बात करते हैं। इस फिगर को कंसीडर करिए। दिस OP इज एन रिवॉल्विंग लाइन। OP इज ए रिवॉल्विंग लाइन। ठीक है। अगर थोड़ी देर के लिए हम इस ट्रायंगल की बात करें तो दिस इज द बेस, दिस इज ए परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेनियस। जिस तरह यहां पे हम इसको 0 कर रहे थे, इसको यहां ला रहे थे, कोइंसाइड हो रही थी किसके साथ? OM के साथ। जब हमें यहां पर इसको 90 लाना है, यानी कि ये इस तरह से रिवॉल्व होगी और ये OY के साथ कोइंसाइड हो जाएगी। when the revolving line OP makes an angle 90 degree with OM, then OP is coincides with OY। Y एक्सिस से वो कोइंसाइड कर लेगी। तो बात करते हैं हम साइन 90 डिग्री की। देखिए साइन 90 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये इधर आ जाएगा, तो ये जो परपेंडिकुलर और ये जो हाइपोटेनियस है वो दोनों सेम हो जाएंगे। यानी कि P परपेंडिकुलर जो है ये PM और ये PO है वो इससे कोइंसाइड हो जाएगी। और कोइंसाइड हो जाएगी तो ये जितनी इसकी जो वैल्यू है उतनी हो जाएगी। यानी कि PM दैट इज इक्वल टू OP। कट जाएंगे, दोनों सेम है इसलिए 1 आ जाएगा। cos 90 की बात करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस जब ये 90 डिग्री है
तो आपका हाइपोटेनियस बेस क्या हो जाएगा, बेस 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये लाइन ये है, जैसे आगे बढ़ेंगे ये लाइन इधर आ गई तो ये डिस्टेंस कम हो गया, ये लाइन देखो पहले सबसे पहले ये लाइन यहाँ थी तो ये डिस्टेंस इसका इतना था, ये यहाँ पे लाइन आ गई, ये रिवॉल्व कर रही है, इसका डिस्टेंस इतना कम हो गया, ये लाइन इधर पहुंच गई, इसका डिस्टेंस कम हो गया, जब ये लाइन इससे कोइंसाइड कर जाएगी तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बेस क्या हो गया, 0 हो गया, और आपका हाइपोटेनस क्या रहेगा, ओपी दैट इज इक्वल टू 0। बात करें tan 90 की, tan 90 या तो कह लीजिए आप tan क्या होता है, sin 90 अपॉन cos 90, तो sin अपॉन cos दैट इज 1 अपॉन 0 दैट इज इंफिनिटी, sec 90 is the reciprocal of cos 1 upon 0 equal to infinity, cosec 90 that is the reciprocal of sin 1 upon 1 equal to 1, cot 90 degree reciprocal of tan, tan का reciprocal है यानी 1 upon infinity equal to 0। इस तरीके से आप 0 से लेकर 90 डिग्री तक डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इन सारी वैल्यूज को अगर हम समराइज करके एक टेबल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए इनको एक मैं याद करने का तरीका और बता दूं, एक ट्रिक रटने की या कैसे भी मान लीजिए याद करने की तरीका, आप 4 तक लिख लें वैल्यू, 0 1 2 3 4, सभी को डिवाइड कर लें 4 से, सबका अंडर रूट ले लें, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा कट जाएगा 1/2 तो 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, ये कट गया 1, ये जो फर्स्ट लाइन होगी वो ये हो जाएगी साइन की 0 1/2 1/√2 और √3/2 और 1। इस तरह से आपको ये साइन की वैल्यूज मिल जाएंगी। 0 ये 0 डिग्री होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है, ये 60 डिग्री है और 90 होता है। कॉस की आप वैल्यूज कैसे निकालेंगे, आप पीछे से उल्टा कर दीजिए, 1 को यहाँ पहले लिख लीजिए, √3/2 को यहाँ लिख लीजिए, इसको यहाँ लिख लीजिए और इसको यहाँ लिख लीजिए और इसको, ये आपको कॉस की रो मिल गई। tan कैसे निकालते हैं, साइन अपॉन कॉस tan होता है, साइन अपॉन कॉस यानी 0/1 दैट इज 0, इसका अपॉन का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, ये पूरा सेम है इसलिए कट जाएगा 1 आ जाएगा, ये अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन दिस वे यू गेट द वैल्यू ऑफ tan। sec जो है cos का उल्टा होता है, इसका उल्टा 1 हो गया, इसका उल्टा 2/√3 हो गया, इसका उल्टा √2 हो गया, इसका उल्टा रेसिप्रोकल 2 हो गया, इसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी हो गया। cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin दैट इज इन्फिनिटी, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और 1। cot किसका रेसिप्रोकल, tan का, तो 1/0 दैट इज इन्फिनिटी, इसका √3, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3 और इसका रेसिप्रोकल 0। इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं। चलिए आओ बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट को अब हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से क्लियर करते हैं। एक दो हम सोल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला है आपके पास प्रूफ दैट, तो इसमें से LHS sec 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec 30 आप जानते हैं 2/√3, tan 60 की भी आप जानते हैं √3, sin 45 की 1/√2, cosec 45 की √2 प्लस cos 30 की भी आप जानते हैं √3/2 एंड cot 60 दैट इज 1/√3, √3 से √3 कैंसिल दैट इज 2, √2 से √2 कैंसिल दैट इज 1, कैंसिल 1/2, तो ये होगा 3 + 1/2, 2 3 या 6 + 1 दैट इज 7/2। देखिए आपका आ गया RHS। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। प्रूफ दैट 4/3 cot square 30 डिग्री प्लस 3
साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री। प्रूफ करना है 3:1/3। देखिए हम LHS ले लेते हैं। 4/3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 30? दैट इज √3। ऊपर स्क्वायर है, आप स्क्वायर लगा दें। 3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60? साइन 60 की कितनी है? √3/2, उसका स्क्वायर कर दीजिए। 2 कोसेक 60 की कितनी है? कोसेक 60 की होती है 2/√3, इसका स्क्वायर कर लीजिए। माइनस 3/4 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसे वैल्यूज को रख लीजिए। अब इस सिंपल आपको सिंप्लीफाई करना है। 4/3 √3 का स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 3, इसका स्क्वायर हो गया 3 और इसका हो गया आपका 4 माइनस 2, इसका स्क्वायर हो गया 4, इसका स्क्वायर हो गया 3 माइनस 3/4 1/3, 3 से 3 कैंसिल दैट इज 4। ये हो गया 3 3 या 9/4, ये हो गया माइनस 8/3 और ये हो गया आपका माइनस 1/4। तो देखिए 4 जिनका डिनोमिनेटर उसको एक साथ ले लीजिए। 4 माइनस 8/3 प्लस 9 माइनस 1/4, ये हो गया आपका 4 माइनस 8/3, 9 में से ये हो गया आपका प्लस 8/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा, यानी कि 4 प्लस 2 माइनस 8/3, तो ये हो गया आपका 6 माइनस 8/3। अगर LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 माइनस 8/3 दैट इज 10/3 एंड दैट इज 3:1/3 RHS। इस तरीके से आप इस प्रश्न को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की जो जानकारी है आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के डिफरेंट एंगल्स पर वैल्यूज़ कैसे फाइंड की जाए, इसको मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाया, डेरिवेशन भी कराया है, टेबल को याद रखने की ट्रिक्स भी बताई है। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, जानकारी अच्छी लग रही है, निःशुल्क है, आप अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। आई बात समझ? और जो है जिससे उन बच्चों को फ़ायदा मिले। लॉकडाउन का समय है, ऑनलाइन ही सहारा है, अच्छे से अच्छे आप इस वीडियो को देखें। ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, पिछली हमारी वीडियोस देखें जो है, और जो अगर आपको कोई कुछ सुझाव है, कुछ कमेंट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगली वीडियो के साथ फिर मिलूँगा मैं, तब तक के लिए नमस्कार।